you so much for having me here, and I'm so delighted to see the progress you guys have made. MAP Pakistan, thank you so much. आपने जो एक काम शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, and getting all so many people together is just an amazing job. Because I always thought that there's a lack of forums or leadership जहाँ पे हम इकट्ठे हो सकें, and then we can. And I came a little early and I had a chat with few of the people here. It was really good to see people from different backgrounds coming over here. ठीक है, जिसका मतलब ये है कि we have a very diverse audience and very diverse leadership here. And our subject is also leadership. आपने mention किया HR, लेकिन I don't think I'm still a HR student. Leadership का भी student हूँ. I'll not be speaking much about HR, but I will speak today on today's topic, which is transformation leadership, right? This is the topic we are talking about, right? So transformation leadership का जो role है, that is extremely important because you impact their lives. That means that you are responsible for their well-beings and not so well-beings, right? आपके actions जो हैं वो define करते हैं कि आपके लोग नीचे वाले कैसे feel करेंगे. If you start thinking that, start putting that lens on, you will realize there is a huge responsibility. बहुत बड़ी responsibility है. मेरे actions, मेरा कहना, मेरा बर्ताव लोगों के साथ defines the attitude of the people who are working under you. So that's important. The moment you realize this कि यार इतनी बड़ी मेरे पास important job है ये जो मैं कर रहा हूँ, so that becomes a heavy job. ठीक है, हम realize नहीं करते इन चीज़ों को. तो आज के ज़माने में हमने, why are we even talking about transformation? This word did not exist about 10 years back, right? Transformation up is a buzzword, and why do we need transformation, right? And if I had to tell you, अब हमने जो transformation शुरू की है, we are kind of, be honest, we are being forced now to transform. ठीक है, ये कोई voluntary transformation के times नहीं है. These are the times when you are being forced, because what's happening? आपके जो आपकी surroundings हैं, आप जिस भी industry के अंदर बैठे हुए हैं, and I met people and people are coming from different backgrounds there. वो सारी industry आपके इर्द गिर्द जो है वो change हो रही है. That's the challenge that we have. Now, can you afford to sit back, relax, और चाय लाओ को बैठ के पीते हैं? You don't have time for this anymore. So you have to transform now. आप नहीं करेंगे तो आपके साथ वाले anyways, they are transforming anyways. They are moving on. So that is the biggest challenge we have. सबसे बड़ा challenge transform करने के लिए. Leadership की हम बात करते हैं. Leaderships या leaders जो होते हैं वो generally वो super heroes नहीं होते. They can never be super heroes. तो ये आपने pressure नहीं लेना कि क्योंकि मैं leader हूँ एक area का या एक domain का, I have to act like a superhero. That's not going to happen. That's too much pressure on you. Superheroes क्या करते हैं? Superheroes आपने movies के अंदर देखे होंगे, Superman है या Batman है, they go people, they help people, and then you're like, oh, this was the superhero I needed. ठीक है? In real life, sadly, this is not the story. We are all human beings. That also then means that when we can be leaders, but it's okay. हम mistakes भी करते हैं. Let's be honest. We make mistakes as well. The troublesome part would be कि आप mistake करें and then you keep on repeating that mistake. ठीक है? If you learn from that mistake and you move on, that is the best thing that can happen to you. And you evolve as a leader. So it's not about being superhero. As leaders, we don't judge ourselves, right? So हमने इस judgment के पैरामीटर में नहीं डालना. मैं यहाँ पे आने से पहले बात कर रहा था, जाहिद साहब के साथ भी मेरी बात हो रही थी. मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो लीडरशिप का टॉपिक है, so huge and so many books have been written and so many YouTube videos are available. मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि what we have done in the group that I represent, packages, उसके अंदर हमने क्या किया. And I will only try to relate how we have done, so that I'm not talking about theory. I'm talking about what has happened, what are the practicalities that we have faced. And as I said, we'll be absolutely honest about, how we move ahead.
एंड हमारी जर्नी कैसी रही है, ठीक है। सो यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, एंड बाय द वे आई विल मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आई विल ओपन दिस अप for a Q&A session, so you can ask me as many questions you want, and I can try to tell you कि मैं कितना का answer, from my experience I can tell you. So what does a great leader look like? ग्रेट लीडर क्या होता है? मतलब अगर मैं आपको कहूँ और आपको यहाँ पे चार्ट्स और वो दे दूँ तो आप एवरीबडी विल कम अप विद अ लिस्ट ऑफ ग्रेट लीडर्स, कि उसको क्या, उसके अंदर क्या ट्रेड्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, एवरीबडी विल हैव अ विश लिस्ट ऑफ people, the attributes. कुछ हिस्ट्री के अंदर बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं कुछ लोगों की जिन्होंने दुनिया को या ऑर्गेनाइजेशंस को टर्न अराउंड किया। एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल जो है, अगर आप इसको गूगल भी कीजिएगा या आपने चैट जीपीटी में डालेंगे, तो सत्या नडेला वॉज वन एग्जाम्पल। एक ऑर्गेनाइजेशन हम सब जानते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट, मिड 2014 के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द बिग नेम सच एज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, वाज अंडर अ ट्रेमेंडस प्रेशर, कंप्लीट प्रेशर, बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स, competitive products were in the market and they were challenging. When there competition in the market, what do they do? वो आपसे आपके बिजनेस का शेयर लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो इफ यू ड्रॉ पाए, वो पाए जो है उनकी बढ़ती जाती है, आपकी कम होती जाती है, ट्रीट लाइक अ केक, चाहे तो उसका केक का पीस जो है वो बढ़ता जाता है, राइट। वो जब होता है तो दैट मीन्स कि आपके जो मार्जिन्स हैं या आपका जो बिजनेस है वो श्रिंक कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग टू माइक्रोसॉफ्ट। 2010 के बाद माइक्रोसॉफ्ट वाज इन अ डिक्लाइन कंपेयर टू अदर। आप हम सब माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स भी हैं, तो आपको याद होगा कि उसकी विंडोज़ आती थी। वी यूज टू नो माइक्रोसॉफ्ट एज एक तो विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे और दूसरा फिर कुछ प्रोडक्ट्स बनाते थे जिसके अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वो बाकी की चीज़ें थी, राइट। ये सारे मार्जिन्स उनके कम होने शुरू हो गए बिकॉज देयर वर अदर प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स ऑन द मार्केट। नेमली एप्पल ने अपने iOS सिस्टम लाने शुरू कर दिया और देयर अदर कंपनीज वर ब्रिंगिंग इन फार बेटर प्रोडक्ट्स। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए। स्काइप ने अपना एक निकाला और बेशुमार प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो गई। जिसका मतलब क्या है? व्हाट इज द फीलिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? Whenever you have competition on the outside, what happens to people inside? They feel hurt. Motivation नीचे जाता है, morale नीचे जाता है, stress level ऊपर जाता है, right? So you start feeling stressed. And when stress goes up, what happens next? People react. People say stuff. People become defensive, right? That's a challenge we have. And these are, by the way, very open and natural human behaviors. There's nothing wrong. It's not a crime. We become stressful, that's fine. It's not a crime to be stressful. But how you act under stressful condition will have an impact on the people who are wondering, Remember we're talking about leaders here. Leaders की बात करें। आप उन बोर्ड रूम्स का इमेजिन करें जिनके अंदर जिनके बॉसेस या उनके बोर्ड्स आपको कह रहे हैं कि यार पिछली दफ़ा तो ये इतना प्रॉफिट था हमारा, what is happening now? ठीक है? Those are very stressful conditions. अब माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ने डिसाइड किया कि ना दे हैव टू गेट रिड ऑफ दिस and they brought in this guy called Satya Nadella, right? This guy walks in, अंदर आया माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, whatever he did, and obviously he was given a task by the board कि जाओ ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग करो। And we all know what restructuring means, right? क्या मतलब है इसका? So मतलब यह है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करो, कुछ we expect something from you. In other words, cut the cost. Cost कैसे cut होती है? बंदे निकाल के, right? So this is the task which was given to him, but he did exactly the opposite. When he went inside the organization, he realized that people were, number one, stressed, not talking to each other. जब आप stressful होते हैं तो क्या होता है? You become defensive. आप बात करना बंद कर देते हैं. You then start thinking कि यार अगर मैं कुछ कहूँगा तो what the other person is going to react, and if I say something, what are other people going to say? And then the worst thing that can happen is you stop sharing the ideas.
और जब आप आइडिया शेयर करना बंद कर देते हैं, दैट्स अ डेथ ऑफ अ इंटेलेक्चुअल डेथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड दिस इज एग्जैक्टली what was going on when Nutella went in, right? So उसने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ की. उसने कहा कि I will not act as I'm expected to act, but I will enforce empathy. The word empathy within the organization. ठीक है? So just imagine somebody who's going in. उसने कहा कि नहीं, मैं बंदे नहीं निकाल रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं first of all I will introduce the concept empathy के साथ मैं काम करूँगा. एक कल्चर था वहाँ पे, बिकॉज वी वर माइक्रोसॉफ्ट, राइट? सो वी न्यू इट ऑल, बिकॉज हमने लास्ट 3 डेकेड से दुनिया को लीड किया. तो वो नो इट ऑल का कल्चर था वहाँ पे. ही सेड नहीं, वी विल नॉट डू द नो इट ऑल. ही इंट्रोड्यूस्ड द लर्न इट ऑल कल्चर. ठीक है, हम सीखेंगे, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, इन नेक्स्ट 1 year we'll learn together. Now how about that approach? You say somebody, देखिए मुझे बाहर से लाए थे और आप समझ रहे होंगे मुझे सब कुछ आता है, मुझे नहीं आता, because you know the company better than me, right? But we'll learn this together. इस concept को लेते हुए वो चले, and just by this concept, I think उन्होंने अपना purpose complete किया. Within next 5 years, Microsoft was worth 3 times more than it was worth in 2014. By 2017, they completely turned around. कोई transformational change के अंदर कोई बंदे या कोई organizational change नहीं किया था. It's just the mindset what a leader drives in the people. ठीक है, सबसे important चीज. और ये चीजें जो है, because these things they impact people. ठीक है, अब यही हमारा डायलेमा भी है. लेट मी टेल यू, आई वर्क फॉर अ लोकल ग्रुप. ठीक है, एंड दैट कंपनी दैट आई वर्क फॉर, एंड देयर सो मेनी पीपल आई नो दैट नो द कंपनी वेरी वेरी वेल इनसाइड आउट, एंड आई थिंक बेटर देन माई सेल्फ एज वेल. हमें जो चैलेंज है वो फेस होता है कि आपकी जब लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं तो पीपल चेंज, इट्स जो इनर्शिया ऑफ चेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है. Inertia is the force which stops you from moving, right? So that is the dilemma. Hum at our company, we also realized that, we have been in the business for last 70 years. What happened was, and we had the best of the best equipment, by the way. अगर आप plant का देखें या जो machinery that we use was always a European kind of machinery, right? So हम always getting the machines from the European manufacturers. Compared to our competitors, जो कि जिनके पास चाइनीज मशीनरी भी आ रही थी, जिनके पास लोअर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी थी, सब कुछ था. तो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज नाउ. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द ग्रुप इटसेल्फ एंड द कंपनी इटसेल्फ वाज प्रोग्रेसिंग बिकॉज देयर वाज नॉट रियली अ बिग कंपटीशन. को बाहर हमारे दरवाजों के बाहर कंपटीशन नहीं बैठा हुआ था. द बिगेस्ट चैलेंज नाउ द कंपनी, द ग्रुप स्टार्टेड फेसिंग वाज that the competition was right at your doorstep. जो चीज आप फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वो लोग 7 रुपए की प्रोड्यूस करके दे रहे थे. एंड वेयर डू यू गो एज अ कस्टमर? आप कहें यार मैं इस कंपनी के साथ 15 साल से काम कर रहा हूँ, but I still get a better price. You leave. Business decision है ना? That's what you do. That rational decision है. Any one of you on any book would do the same thing, right? What do you do with the infrastructure that this company packages is made, right? आप क्या करेंगे अगर आप वहां पे हो तो क्या करेंगे? So these are the times of change, induced change, where you have to change, you have to think something out of the box. आपके पास सारे टिक्स पूरे हैं. You have the best people, by the way. मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिला जो कि they have known the company or they have worked with the company for many years. लोग आपके पास बेस्ट क्वालिटी के, बेस्ट नॉलेजेबल पीपल इन इट्स क्लास, राइट? ऑर्गेनाइजेशन, मशीनरी, मैकेनिक्स, एवरीबडी टॉप क्लास, एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द बिजनेस. और दैट्स अ वेरी डेंजरस साइन. यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट? सो द आइडिया वॉज टू गो एंड रीथिंक द एंटायर सिचुएशन, राइट? सो हमने टेक्नोलॉजी की तरफ इन्वेस्टमेंट शुरू की. वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड Project Burak, just named it.
और हमने कहा कि यार हम वी आर गोइंग टू ब्रिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी? ट्रांसफॉर्मेशन ये थी कि हम सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करेंगे। द पेपर वर्क हैज़ टू एंड एंड देन एवरीथिंग हैज़ टू बी कंप्यूटराइज्ड, सो द डिसीजन मेकिंग कुड बी क्विकर, जल्दी डिसीजन कर सकें और इंटेलिजेंट डिसीजन कर सकें। ठीक है, इंटेलिजेंट डिसीजन क्या? अब ये नहीं कह रहे कि हम इसके अंदर से लोगों को निकाल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो एक आपको डिसीजन करके देगा, आपको एक सिस्टम डिसीजन करके देगा। ह्यूमन चेक विल ऑलवेज बी देयर बाय द वे। सो डायलेमा ये था कि हमारे पास जो चैलेंज था कि हम वी वर फोर्स टू मेक दिस चेंज। अगर ना करते तो वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी एंड द बिजनेस, राइट? उसके लिए आपको वो लोग चाहिए होते हैं सारा कुछ करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। यू नीड पीपल, द राइट ड्राइवर्स, जो कि सही तरह से ड्राइव करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन को टू मूव फॉरवर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो पुराने ड्राइवर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, इट्स जस्ट द थिंकिंग पैटर्न जिसको हमने चेंज करना है, राइट? And the best thing and the luck was on our side that the people who were leading the businesses and all had the right framework in their minds as well. It's about time, it's about change, it's about people. ठीक है? तो idea was to have this done in a way कि जब हम इस progression से गुजरें तो आसान हो। लेकिन I'll tell you the story now. When we entered the phase and we got the consultants and all, और कंसल्टेंट जब आता है तो आपको क्या कहता है? आप सारे यहाँ पे लीडर्स बैठे हैं बिजनेस में, व्हेनेवर यू इन्वॉल्व अ कंसल्टेंट, वो आपको एक लंबी सी चेकलिस्ट बना के देगा कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग विद योर कंपनी। एंड एज अ लीडर, एज अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, एज अ एचआर पर्सन, एज अ टेक्निकल पर्सन, यू रीड इट्स लाइक इतनी प्रॉब्लम्स तो मैंने कभी देखी नहीं थी, बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट, राइट? दे ऑल्सो वांट टू गेट द प्रोडक्ट, और उन्होंने आपको एक वर्स पिक्चर दिखानी है। That's the cycle we went through, by the way. So I'm sure कि आप भी करते होंगे और आपको भी ये चाहिए, but I just want to be absolutely transparent कि ये जो road to transformation है कभी आसान नहीं है. This is not easy for anyone. They give you a horrifying picture कि ये आपके साथ मसला है, इतने पैसे लगेंगे, ये देंगे तो इतने टाइम पीरियड में हो जाएगा. टाइम, पैसे वो डबल बताते हैं. They'll give you a time period which is absolutely डबल करके बताते हैं so that हमारे पे कोई penalties ना लगे and all that. I will sit back and see कि यार how am I going to deal with all this, right? This is a huge challenge that we have ahead. And then you want leaders to drive this forward. ये सारी जर्नी कैसे होती है? तो the challenge was कि ये सारे बैठे और देखें, and then we formulated some teams, so we said जो लीडर बिल्कुल टॉप पे बैठा होता है, maybe that leader is not that close to the reality. People who can help them as well. So आपको एक पूरा छोटे-छोटे इकोसिस्टम बनाने पड़ते हैं उन मीटिंग्स के लिए, उन डिबेट्स के लिए, क्योंकि when you sit in a environment which is very challenging and which is time bound, उसके कंपनी के पैसे लगे हुए हैं, you know how many hammers are on your head. उसके लिए आपको you need people जो उसको सही तरह से एड्रेस कर सकें. तो ये सब जब आप कर रहे होते हैं तो वी नीडेड पीपल जो अपनी लीडरशिप के स्टाइल को ठीक करने से पहले या लोगों को ठीक करने से पहले सेल्फ ऑडिट करते हैं. यू नीड टू डू अ सेल्फ ऑडिट फर्स्ट. एम आई द राइट फिट फॉर दिस? कैन आई डू दिस? डू हैव द एबिलिटी? बिकॉज कैन आई डू व्हाट आई एम गोइंग टू प्रीच? ठीक है, बड़ा आसान है खड़े होकर लेक्चर देना. It's difficult to actually do it. मैं आपसे इसलिए यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि because we've gone through that phase. मैं जाहिद साहब से भी ये कह रहा था कि मैं उसी पे बात करूँगा जो कि मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से tried and tested method है. And it's all about people, by the way. यहाँ पे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे हम इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे लाइटें जल रही हैं, सब कुछ चल रहा है. एक मिनट के लिए इमेजिन करेंगे ये लोग सारे बाहर चले जाएं, दिस हॉल विल हैव जीरो वैल्यू. Today we are here, we have a value because all of us are here. Exactly this is how organizations work as well, right? So लोगों के साथ वैल्यू होती है. लोगों की वैल्यू क्या है? लोगों की नॉलेज, लोगों की एक्सपीरियंस जो कि उनके दिमागों के अंदर है, that's the value that they have, right? So ये हम, that was the journey that we had
उन लोगों को लाएं जो बिल्कुल अपने रूट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, एंड दे आर विलिंग टू डू देयर सेल्फ ऑडिट फर्स्ट। मैं जो बात कर रहा हूं या मैं जो पहले, एम आई रेडी फॉर ऑल दिस, राइट? जब आप ये सारी बातें करते हैं तो इसके जो क्रक्स है, एक बड़ी ज़बरदस्त साइमन सिनेक की किताब है, नो योर व्हाई। कैन आई हैव अ रेज ऑफ हैंड कि कितने लोगों को पता है साइमन सिनेक की इस किताब का नो योर व्हाई? Few people, but अच्छा, so if you want to gain something out of this session, please इस नाम को लिख लें अपने पास, know your why, और you have a read. It's a very easy read. It's not a difficult read. It's a very easy read. साइमन सिनेक की किताब है, ठीक है? उसमें बड़ी ज़बरदस्त ये बात करता है। एक बंदे, एक साहब का नाम है, इनका नाम है हर्ब केलर। ये CEO थे साउथ वेस्ट एयरलाइंस के, अमेरिकन एक एयरलाइंस के। एंड यू नो अमेरिका के अंदर जो एयरलाइन का बिजनेस है, हाईली कंपेटिटिव बिजनेस, डिफिकल्ट, इट्स अ कट थ्रोट। अगर रियल सेंस अगर कट थ्रोट की कोई चीज़ हो सकती है तो दैट्स व्हाट इट इज, द एयरलाइन बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज द एयरलाइंस यूनाइटेड, डेल्टा, साउथ वेस्ट, बहुत सारी एयरलाइंस और बहुत सारा। अब हुआ ये कि पोस्ट 9/11 जो एयर ट्रैवल है उसके डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गए, कंप्लीटली चेंज। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन द सिक्योरिटी वाज एनहांस्ड, राइट? वो एकदम से एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ रही है, पासपोर्ट कंट्रोल्स बढ़ रहे हैं, पीछे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं जो कि पूरा ट्रैक करना शुरू करें कि एक बंदा कहाँ से चढ़ा और वो माल्टा से चढ़ा और वो न्यूयॉर्क पे कैसे आया। यू नो, जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल, राइट? उसके पीछे कुछ सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसके पीछे पूरा नेटवर्क है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्क्रीनिंग, डिफरेंट चीज़ें, वो बहुत सारी R&D हो रही है ऑन द स्कैनर्स। इस सारे की एक कॉस्ट है, ठीक है? हु डू यू थिंक पेज दैट कॉस्ट? पीपल, राइट? और पीपल वो कॉस्ट किसको पे कर रहे हैं? फॉर द ट्रैवल टू द एयरलाइन, ठीक है? अब वो एयरलाइन क्या करेगी? वो एयरलाइन ने अपने टिकट के अंदर आपको वो कॉस्ट चार्ज करनी है। दैट्स अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी स्टोरी बताऊं इसकी, ठीक है? तो जब ये साउथ वेस्ट एयरलाइन को ये चैलेंज आया और ये पोस्ट 9/11 जब ये द एयर ट्रैवल बिकेम सो एक्सपेंसिव, एयरलाइंस केम अप विद अ स्ट्रैटेजी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा जी हम टिकटें तो हम ज़्यादा कंपटीशन प्राइस के अंदर नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम प्राइस के ऊपर लेके जाएंगे तो डेल्टा वाले पे ले जाएंगे या अमेरिकन एयरलाइंस ले जाएंगे या कोई और ले जाएगा। सो व्हाट एयरलाइंस स्टार्टेड डूइंग वाज दे इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पे पर बैग। आपकी एक टिकट की कॉस्ट है, उसके बाद आपके एक बैग की कॉस्ट है। तो आप 3 बैग लेके जा रहे हैं, आप 3 बैग का पैसे देंगे। अब ये उस टाइम पे हर्ब केलर को इंट्रोड्यूस किया गया इस एयरलाइन के अंदर। दिस इज बाय द वे ऑल रिटन इन द बुक नो योर व्हाई, एंड आई लव दिस स्टोरी। इनको जब उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया वहां पे, तो उन्होंने कहा यार देखो, लिसन, आई डोंट थिंक दैट इज आवर पर्पस टू चार्ज पीपल मोर। व्हाई आर वी इन दिस बिजनेस? व्हाई आर वी इन दिस बिजनेस, राइट? और लोगों ने उसको बताया कि यार द एंटायर पर्पस, द मिशन स्टेटमेंट जो वहाँ पे कंपनी के बोर्डरूम में लिखी हुई थी, मेक फ्लाइंग अफोर्डेबल फॉर एवरी सिंगल सोल। I went back to that, right? If you know your why, which is to make flying affordable for every single soul, does your strategy of pay per bag work? It does not, right? It does not work. वो जो बोर्ड वहां पे लगा हुआ है एयरपोर्ट के अंदर, उसकी एक कॉस्ट है। He does not want to pay this. उसने कहा मैंने नहीं करना है, जो कर लो करना है। उसके बोर्ड ने उसको थ्रेट भी किया कि आप क्या कर रहे हैं, यू नो, अगेन वही वाली स्टोरी, रीस्ट्रक्चर करो। उसने कहा मैं नहीं करूँगा, I'll not do this, right? Again, he quadrupled the profits, and that company, by the way, आप इसी हिस्ट्री के अंदर जाके देख लीजिए, 47 years consecutive successful company. In the history of aviation इतनी सक्सेसफुल कंपनी और कोई नहीं है, ठीक है? तो इट इज ऑल अबाउट द लीडरशिप। आपको लीड कौन कर रहा है, राइट? एंड देन व्हाटएवर यू से,
आप जो कहते हैं या आपकी जो लोग आते हैं जो वादा करते हैं, you have to be very authentic about it, you know, so you can't just claim कि मैं ये करने के लिए आया हूँ। और ये इसी वजह से आज जो हमने बात भी करने का है, मैंने कहा यार हम वो बात करेंगे जो कि प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है जिसका मौजूद है, राइट। एक मीटिंग मुझे याद है, यू नो ट्रांसफॉर्मेशन की मीटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हम बैठे हुए थे और फ्यू माई कोलीग्स हियर एज वेल जो कि उस मीटिंग के अंदर थे। वहाँ पे कुछ गर्मा गर्मी हो गई, ठीक है, एंड इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल। आप यू नो यू कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन, राइट। आइडिया ये था कि लोग जो फियर थे वो टेबल पे रख नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर लेके चले जाते थे, एंड व्हेन दे वर गोइंग दे वर एक्चुअली नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वर थिंकिंग कि अगर हम ये करेंगे, वो ऑब्वियसली ऑल इन अ गुड सेंस, हम करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रोजेक्ट गॉट डिलेड एज वेल बिकॉज लोग काम वो नहीं कर रहे थे जो वो क्लेम कर रहे थे। तो चैलेंज ये था कि ये बार बार जब डिबेट आनी शुरू हुई टेबल पे, यार काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा। देन वी रियलाइज, यू नो, दैट्स अगेन अ लर्निंग फॉर अस कि पीपल डिड नॉट ट्रस्ट ईच अदर कि यार अगर मैं करूंगा और मुझसे गलती हो गई तो हाउ एम आई, यू नो, हाउ द अदर पर्सन इज गोइंग टू फील अबाउट इट। How do you feel? Can I express myself to you without the fear of you judging me? अगर कहीं पे भी ये fear आएगा या ये thought generate होगी, I cannot perform, I cannot talk, ठीक है? That the moment you create an environment where people feel कि वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते, पीपल विल नॉट। एंड बाय द वे, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये जो लोग हैं ना जो बिल्कुल नीचे बैठे होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स, कस्टोडियंस ऑफ अ प्रोसेस। दे नो बेटर देन द यू नो टॉप मैनेजमेंट। ये हमेशा, और ये एक्सपीरियंस से आपको समझ आती है बात, ये उस तरह से समझ नहीं आती, क्योंकि जब चाइनीज़ विस्पर होता है ना, चाइनीज़ विस्पर, आपने एक बात की दूसरी तीसरी, जब तक वो टॉप लेवल पे बात पहुँचती है, इट हैज़ मैनी डिफरेंट वर्जन्स, राइट। तो वो ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करते हुए आप, बाय द वे, हमने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की। मैं आपको बताया, हमारे पे कंसल्टेंट आए, उन्होंने हमें कहा कि यार ये चीज़ें हैं। हमने एक कंसल्टेंट से बात की, फिर दूसरे से बात की, फिर तीसरे के साथ ट्रायल किया, फिर चौथे के पास गए, और ओनली टू रियलाइज दैट कंसल्टेंट्स आर ऑल्सो प्लेइंग विद अस। सारे लोग प्ले कर रहे होते हैं, हर एक को अपना बेनिफिट चाहिए होता है, नोबडी इज देयर इन द बिजनेस। बहुत देर से आपको रियलाइज होता है कि यार, यू नो, एंड देन व्हेन समथिंग एट अ क्रंच टाइम हैपेंस, आपको रियलाइज होता है कि नोबडी इज विलिंग टू ओन द मिस्टेक। बट एज लीडर्स यू कैंट अफोर्ड टू डू दैट। एज लीडर्स, और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो एज लीडर्स यू हैव टू ओन द मिस्टेक्स इवन इफ यू डोंट ओन दम। वो आपकी मिस्टेक नहीं थी, but as a leader you have to own it. Start getting into a habit of owning mistakes. Because जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आपके कहने के ऊपर कर रहे होते हैं, right? So that they do it because you ask them to do it, right? That is extremely important. एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है is while people, आप एक ऐसी environment create करें where people are able to talk to you, to speak to you, to express their fears, and then you have to listen and do something about it. The worst thing that can happen as a leader is that people say stuff, you listen or you pretend to listen, but you don't do something about it. Then people will stop telling you the truth. And that's the worst thing that can happen to an organization. जब आपको लोग आपसे बात करना बंद करते हैं, वो एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है जिसके अंदर लोग फील करें। अच्छा, और उसके लिए भी आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रजिस्टर दैट यू हैव एक्टेड अपॉन, यू वर लिसनिंग एंड यू हैव एक्टेड अपॉन इट। चाहे वो आपको एक्शन पसंद हो या ना हो, बट यू हैव टू शो कि इसके ऊपर एक्शन जो है वो लिया गया है। और पार्ट ऑफ द जर्नी, बीइंग एम्पैथेटिक पे मैंने अभी आपसे बात की है। एक चीज जो रियल एसेंस है ऑफ योर लीडरशिप स्टाइल, आप किसी भी चीज के अंदर बैठे होते हैं, गेट इन टू अ हैबिट ऑफ लेटिंग गो ऑफ योर अथॉरिटी। लेट इट गो, ट्रस्ट पीपल
टू टेक डिसीजंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो डिसीजंस नहीं लेंगे और आप सब अपने पास रखेंगे तो व्हाट हैपेंस, लोग करते हैं अपवर्ड डेलीगेशन, जिसका मतलब ये है कि सारी डिसीजन मेकिंग आप फनल होती हुई आपके पास आ रही है, और आपके पास अगर मल्टीपल डिसीजन लेने के हैं तो हाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो आप हर टाइम पे एक सही डिसीजन लेंगे, बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू, राइट? एम्पावर पीपल एंड लेट देम प्ले, गिव देम द रूम टू प्ले अराउंड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। माइंड पैलेस, शायद आपने देखा हो या सुना कभी। क्रिएट दैट माइंड पैलेस in your mind. What do you want to achieve in a realistic sense? पैलेस क्या होता है? Imagine yourself entering into a palace. ठीक है, पैलेस का दरवाजा खुलता है, what do you see? List down the things you see or you want to see. मैं एंटर हुआ, there was a hall, huge hall, उसमें लाइट्स लगी हुई थी। कितनी लाइट्स थी? List down that detail. There was a receptionist, okay? There was a couch, there was a sofa, there was a every list down that thing, and that's how you can imagine the future. जब आप बात कर रहे हो तो intellectual simulation की, that's how you imagine things, right? जो imagine करते हैं, you have to note it down. And then who are the best people for that, उस task को carry out करने के लिए? Who are the best people? अगर आज मैं आपसे बात करता हूँ, you're formulating a future leadership. Imagine that the entire leadership of this organization or this country is sitting over here. Imagine who are the people. What kind of people you want to see. When you start imagining people, then you start making those people, because in 20 years time, all of people, sitting over here will be changed, right? So there will other people sitting over here. उन लोगों को जो आप the future state कहीं imagine करना चाहते हैं, that start imagining them here. एक बोर्ड रूम की कंपोजिशन, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक मैनेजमेंट की कंपोजिशन, स्टार्ट इमेजिनिंग, लुक एट योर टीम्स, इमेजिन करें कि मैं क्या किस किस्म के लोग यहां पे देखना चाहता हूं, यू हैव टू इमेजिन इट हियर। देन whatever you do, you need to have inspiration, you have to have a story to tell, because people, there's a storytelling is the oldest trade in the world, storytelling, right? जो inspiration है, ये motivation has to come from something or somebody, and then obviously you need to idealize कि वो क्या environment है, किस किस्म के individual को मैं क्या काम करवाना चाहता हूँ। ये 4 eyes हैं, those are extremely important when you're looking for transformation. But this is theory, but I just thought I will also share this with you, right? जो इंटायर या आज हमने कॉन्सेप्ट पे बात की है, इट इज ऑल अबाउट पीपल, बट इट इज ऑल्सो अबाउट यू, बिकॉज स्टार्ट्स विद यू, राइट? कि हमने ये बात की थी अभी कि इट स्टार्ट्स विद माई सेल्फ, राइट? एंड देन यू impact the people. So whatever decisions, whatever you do in your life is going to impact people. So first, आप जो traits लोगों के अंदर देखना चाहते हैं, whatever you want to see, have a self check first. Do I have it? मेरे पास ये है कि नहीं है? और अगर कहीं पे भी, and you have to be honest, the best way to do this is to do a self audit sometime. सेल्फ ऑडिट जो है ना, ये 100 लोगों की मौजूदगी में नहीं होगा। टेक योर टाइम, टेक योर सेल्फ आउट ऑन टू अ कॉफ़ी शॉप और समथिंग, एंड देन इमेजिन योर सेल्फ कि यार मेरा टीम मेंबर है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, यार ये ट्रेड्स हैं, ये चीज़ें हैं, या मेरी कंपनी है इसके अंदर ये चेंज लाना चाहता हूँ। वो चेकलिस्ट बना लें, उस चेकलिस्ट में ये देख लें ये चेकलिस्ट मेरे पे पूरी आती है कि नहीं, डू आई क्वालिफाई फॉर दिस और नॉट। दिस इज द बिगेस्ट सेल्फ चेक। आपको पता चल जाएगा कि आप ये काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। एक एलिमेंट जो मिसिंग होगा, इसका मतलब है कि अभी काम नहीं होगा। ये ट्रेड्स मुझ पे है कि नहीं। मैं किसी को कहता हूँ यार सुबह टाइम पे आ जाओ, तो क्या मैं सुबह टाइम पे आता हूँ कि नहीं आता? मैं कहता हूँ यार प्रोजेक्ट का खत्म करके जाना, मैं खुद करके जाता हूँ कि नहीं करता? व्हाट एम आई डूइंग, वेयर एम आई गोइंग? तो आई थिंक दैट्स आई वांटेड टू talk to you about, but I just want to
close this and then have a Q&A with you. That this journey for us was never easy. जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की है अब यहाँ तक, एंड इट्स ऑन गोइंग जर्नी। सर मैं अभी बात कर रहा था, ये कोई दुनिया के अंदर क्लेम नहीं कर सकता कि इट्स अ सक्सेस और अ फेलियर, बिकॉज इट्स अ ऑन गोइंग जर्नी। हमेशा ये ऑन गोइंग ही रहेगी, इसका कोई एंड नहीं होता। बट द एटीट्यूड दैट यू कीप और यू कैरी मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपका एटीट्यूड है। व्हाट डू यू कैरी अलोंग? डू योर पीपल सी यू एज समबडी दैट मैं जैसा बनना चाहता हूँ या ऐसा मैं करना चाहता हूँ? डज दैट हैपन? बी ओपन एंड बी आस्क पीपल, यार गिव मी अ फीडबैक। एज अ लीडर feedback is extremely important. If you're not getting the feedback, by the way, then there's something lagging. We don't qualify as leaders. Nobody qualifies as a leader. If you don't have this loop of getting the feedback for yourself, right? मैं बहुत ज़्यादा बोला, काफ़ी लंबी बात कर गया हूँ मैं। समझ खामोशी इतनी ज़्यादा, मेरा अपना पसीना निकला है ऐसे चक्कर के अंदर। Anyways, thank you so much. I am open to now questions. You can ask questions and I'm ready to take them. जी सर। Myself, SN Heather from Ghulam Farm Group. I'm Senior Manager HR, leading the sales office as HR for GFG. अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और आपने बताया ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। You quoted example of some 8 lines जो साइमन साइनिक के बुक में दिया है कि उन्होंने अपने मार्केटिंग या बजट कॉस्ट कट किए, दूसरी कॉस्ट कटिंग के लिए। मेरा इंटरेस्ट ये जानने में कि आप लोगों ने पैकेजेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, जिसकी वजह से जो मार्केट में ये कंपटीशन था, प्राइस वॉर चल रही थी, उसमें से कैसे आप लोग ने थोड़ा समझाइए। जी देखिए, इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग एफिशिएंसीज टू एग्जिस्टिंग सिस्टम। बहुत सारे लूप होल्स होते हैं हमारे पास। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, टू रीस्ट्रक्चर, रीऑर्गेनाइज, that should be the last parameter that you should be taking. उससे पहले सिस्टम के अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होती हैं। द आइडिया इज टू फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड देन रिमूव इट। वो जो गैप्स होते हैं ना, उनको हमने ब्रिज करना होता है। एंड टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन डिजिटलाइज, वी ऑल्सो रियलाइज कि हमारे बहुत सारे लोग रिडंडेंट काम कर रहे हैं जो कि कोई और बेहतर काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पेपर फिलिंग। तो दोज वर द थिंग्स एंड दैट्स व्हाट वी रियलाइज कि हमारे पास। अच्छा, एक और बड़ा एडवांटेज जो ग्रुप के अंदर है वो ये है, द ग्रुप इज एक्सपेंडिंग। तो जब आप एक्सपेंडिंग स्टेट के अंदर होते हैं, यू नीड मोर पीपल, बट वी आर नॉट हायरिंग मोर पीपल, वी आर गिविंग इनसाइडर पीपल मोर जॉब्स बाय रिमूविंग देम फ्रॉम अ मेंटेन टास्क। सो वो हम डिजिटलाइजेशन एक तरफ कर रहे हैं और जो वहाँ से लोग फ्री अप होते हैं उनको डिफरेंट उस वेंचर्स के ऊपर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी डू। थैंक यू। वेरी नाइस क्वेश्चन बाय द वे, वेरी गुड। जी सर। जी गुड इवनिंग, मेरा नाम इमरान शेख है, वर्क फॉर पॉली फर्टिलाइजर कंपनी। आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन दैट इन एन स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं लाइक आर्स, FFC और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे प्रोसीजर्स, SOPs दे डोमिनेट, वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कैसे उसको कल्टिवेट करें विदाउट डाइल्यूटिंग एडहेरेंस टू प्रोसीजर्स एंड डिसिप्लिन। अच्छा इमरान, वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि आपके जो सिस्टम बने हुए हैं ना, या हम SOP जो बने हुए होते हैं हमारे, उनको समझते हैं कि ऊपर से उतरी हुई किताब है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हो सकता। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, इट्स अ टाइम टू रियलाइज दैट वी हैव टू अडैप्ट टू द न्यू नॉर्मल। एक वर्ल्ड है आउटसाइड जो चेंज हो रही है, ठीक है। सो देयर इज अ चेंज हैपनिंग आउटसाइड एंड पैरेलल टू दैट इज द रेट ऑफ लर्निंग, ठीक है। सो जो चेंज बाहर हो रहा है उसके पैरेलल एक रेट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। वो जो अब आई एम ट्राइंग टू मेक यू इमेजिन, अब मैं ग्राफ होता तो मैं यहाँ पे बना के दिखाया था, बट जस्ट इमेजिन कि जो रेट ऑफ लर्निंग और रेट ऑफ चेंज कैन नॉट बी टू फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है।
जब आप वो लर्न कर रहे होते हैं तो आप यू ऑल्सो रियलाइज यू हैव टू अडैप्ट सम न्यू SOPs, या आहिस्ता आहिस्ता आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं। ना हमारे लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल ये हुई कि जिस कंसल्टेंट के साथ हमने काम करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि आपको बहुत सारी जगहों पे आपको स्ट्रक्चर्स को रिविजिट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ऑप्शन हमारे पास आती नहीं है, ठीक है। तो हमें वी हैव टू रिविजिट अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स, रिविजिट अ लॉट ऑफ पॉलिसीज, जस्ट टू मेक श्योर, बिकॉज हमने एक फैसला ज़रूर किया था, वो दैट आई कैन शेयर, कि जब भी आप कोई सिस्टम लगा रहे हैं ना, हमने उसको मिनिमम चेंजेस, मिनिमम अडेप्टेशन के साथ इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सिस्टम को चेंज करके अपने तरफ कस्टमाइज कर लेते हैं, यू लूज आउट अ लॉट ऑफ वैल्यू विच इज़ गिवन इन अ सिस्टम, राइट। सो वो जो सिस्टम लोगों ने डिज़ाइन किया होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ वर्क, राइट। तो वो काफ़ी चीज़ें बना के बने होते हैं। तो अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन ले आएंगे तो दैट काइंड ऑफ उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, फिर आप लोकल सिस्टम बना लेते हैं। तो उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि देन वी हैड टू अडैप्ट। वो हमें कहीं पर कहा कि लीन करो स्ट्रक्चर को, तो हमने लीन भी किया, हमने बहुत सारी चीज़ों को रिविजिट किया। लेकिन अगेन जब मैं लीनिंग की बात कर रहा हूँ, उसके बाद देन वी फाउंड अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द पीपल एज वेल। तो SOPs आपको, दीज आर फॉर ह्यूमंस, राइट। इवेंचुअली यू विल हैव टू चेंज। अगर आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पे जाना है, then we have to change. पहले तो हमारे पास ना कोहर्ट्स आते हैं ना, 4 कोहर्ट्स के सब चलते हैं कि आपको शुरू सारी जनरेशन शुरू हुई, फिर बेबी बूमर्स आए, उसके बाद मिलेनियल्स आए, फिर जेन ज़ी आए। Umar, why you had to do this to me, man? You see, अब ये जो Gen Z वाला क्वेश्चन है, this follows me everywhere I go. एक बॉडी है फोर्ब्स की जिसके अंदर आई एम मेंबर, आई डोंट नो व्हाट दे रियलाइज्ड, उन्होंने कहा कि अब उसके अंदर दुनिया के कोई 300 HR के और लीडर्स और प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा Gen Z को ये लीड करेगा, ठीक है। ये Gen Z का जो क्वेश्चन है ना, ये बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, दिस अ रिसर्च, और रिसर्च ये कहती है, एंड दिस इज व्हाट वी टेल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, रिसर्च ये कहती है आई एम एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, या मेरी हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, दे आर सेट एट अ वेरी लेवल, वी आर टू फार अवे फ्रॉम अल्फाज एंड जेन ज़ीज, राइट। हमारा डिस्टेंस टू देम इज़ वेरी, बहुत ज़्यादा है, बीच में बहुत सारे आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक है। जो रिसर्च है, जो इंटरनेशनल रिसर्च और सिलिकॉन वैली ऑल दोस कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग, उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो व्हाट इज विच जनरेशन इज क्लोजेस्ट टू जेन ज़ी या अल्फा, वो कौन लोग हैं? मिलेनियल्स, राइट। और ये आपने बात करनी है, आपकी जो बात समझेंगे ना, ये वो लोग हैं, क्योंकि हम पहले इनसे डरते थे, बट आफ्टर 20 years they were adapted to the new normal, right? वो नॉर्मल के साथ, उनसे कहें, इनसे बात करें, जब वो उनसे बात करते हैं, that's what we tried. तो हमारे पास कुछ लोग आए जो हम ना MTOs के बैचेस लेते हैं, ऑल द टीम विच गैदर्स हियर, वो सारे MTOs के हम बैचेस ले रहे होते हैं, तो अब वो सारे Gen Z के लोग आ रहे हैं उसके अंदर। तो मैनेजर्स ने मेरे पास आना शुरू कर दिया, यार ये तो हमें समझ नहीं आती कैसे, हाउ डू वी डील विद देम। लाइक यू डोंट डील विद देम, ask the people who are the youngest, the closest, जो आपके पास पिछले 2-3 साल से, ask them to help you out. And then they started talking to them and made them the managers and all. तो that is how, तो वो मेरा ख्याल है वो जो लिंगो का एक जो क्लोजनेस है ना ऑफ एज की, that really helps, वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करती है, ठीक है। That's what the research says by the way, and this is actually working for us as well. So ये इन लोगों के लिए भी जो आप अगर समझे कि मैंने Gen Z को खुद चलाना है, डोंट ट्राई इट एट होम, ज़रा कोशिश करें कि किसी और को कहें कि वो चला लें जो आपसे बेहतर जानते हैं, ठीक है, एक चीज़। अच्छा, जो दूसरा पार्ट था आपका, विच वॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, Gen Zs, Alphas, baby boomers, artificial intelligence is equal for each one of us. It does not matter कि आप अल्फा से बिलोंग करते हैं या Gen Z हैं या योर बेबी बूमर या आप 80 years के हो गए हैं,
You know why? Because Chat GPT हम सबकी जिंदगियों में आया और it has been only here for 2 years, 2.5 years, right? So learning curve सबका एक जैसा है. The only thing which will be a different between you and your Gen Alpha would be your only thinking process. क्योंकि आप समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है. लर्निंग का उन्होंने भी 2 साल पहले शुरू किया, आपने भी 2 साल पहले शुरू किया. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपने दिमाग से ना ये निकाल दें कि मैं अभी के मैं बहुत दूर हूँ इस चीज़ से. यू आर नॉट टू फार अवे. चैट जीपीटी हम सब यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे भी वो यूज़ कर रहे हैं, आप भी वो यूज़ कर रहे हैं. तो व्हाट्स द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस. सो देयर इज नो, यू कैन बी 99 years old and then you can be 15 years old. It does not matter. इसलिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. जो लोग 70s और 80s में पैदा हुए, उन्होंने 80s के अंदर पहला कंप्यूटर देखा था, ठीक है. 85 के अंदर, 89 के अंदर वो पेंटियम 1, 2, 3 की जनरेशंस लोगों ने देखी, ठीक है. लोगों ने कहा था कि ये जो कंप्यूटर आएगा ये हमारी जॉब्स ले जाएगा, ये खाली कर देगा, बहुत मसला हो जाएगा. नथिंग हैपेंड. एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कोई कंप्यूटर से बड़ी इजाद नहीं है. It's just a methodology of thinking, right? कंप्यूटर से बड़ी नहीं है. कंप्यूटर आया था उसके बाद आया. तो I think हमने कंप्यूटर्स के साथ भी अपना लर्निंग कर्व जारी रखा. I think it's the same thing with artificial intelligence as well. ये वही लर्निंग कर्व है, ये हमने देखा हुआ है. इसी हॉल के अंदर लोगों ने पेंटियम 1, 2, 3 यूज़ किए होंगे, गेम्स भी खेली हुई हैं हम लोगों ने. It's the same thing. Nothing to be scared of. Nothing. हाँ, scared तब होना है जब आप इसको छोड़ दें, जब आप stop using it. Don't stop using it. Go with the flow. Learn every day. अब मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो गूगल से ज़्यादा चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं. It's also fine. Do it. But just make sure कि बहुत ज़्यादा पर्सनल डिटेल्स जो है ना आपने कहीं फीड नहीं करनी, because we don't know how it's going to end. Where is this information going? We don't know it yet. I wish का आंसर मुझे नहीं पता. मैं एक टेक की कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले, लास्ट वीक. वहाँ भी ये बात कर रहे थे. वहाँ पे इंटरनेशनल गुरुज आए होते हैं, वो भी कह रहे थे हमें नहीं पता कि ये डाटा कहाँ जा रहा है. वी डोंट नो. ठीक है. तो दैट्स व्हाट आई होप आई आंसर्ड यू. अभी आप ये ट्रांसफॉर्मेशन पे रिसेंट आपने फार्मा में गए, आप बिल्कुल चेंज था. आप बिल्कुल वो तो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, चेंज मैनेजमेंट मैनेज की होगी. क्या ऐसे रिस्क थे वहाँ पे, ये चैलेंजेस थे जिनको आपने पास का पैकेजेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा? कोई भी एक ट्रांजिशन बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आप वो लर्निंग से कोई देखोगे? और सो वी एंटर्ड इनटू फार्मा बिजनेस जिसका हमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था. ठीक है. हम पैकेजेस हैज ऑलवेज बीन अ पैकेजिंग कंपनी एंड नेवर इनटू अ फार्मा. ये हमारे डोमेन नहीं है, ना हमें ये चीज़ें आती हैं. ठीक. तो वी वेंट इनटू फार्मा बिजनेस. आई स्टार्ट मीटिंग पीपल. मैं किससे मिलूंगा? जनरली आप एचआर के किसी बंदे को कहें कि मुझे फार्मा का सीईओ ला के दो, तो फार्मा के लोगों से मिलेगा ना. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग. एंड देन वी रियलाइज्ड कि maybe we have people inside the system. What do you need? What do you need to be a leader? लीडर का काम क्या है? उसे लोगों को ड्राइव करना है. उसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, उसके पास स्ट्रैटेजिक नॉलेज होनी चाहिए. राइट. स्ट्रैटेजी क्या है, करना क्या है, लोगों को क्या सोचना है, इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करनी है. फार्मा का जो रेसिपी है वो उसको पता होना जरूरी नहीं है. ठीक है. सो वी टुक अ चांस. Take a huge chance. We took somebody who was from a financial background, CA community यहाँ पे बैठी हुई है, तो you know, chartered accountant background. We said, यार आपने ये सारा साइकिल देखा है. Can you do this? Can we try you out for 6 months and see how it goes? वो जो 6 महीने थे पहले, एक कंपनी जो पिछले 13 साल से लॉस के अंदर थी, उसने 6 महीने के अंदर वो रिकवर किया. ठीक है. And that's the vision of Syed Babar Ali, by the way. ठीक है, जिसकी हम बात कर रहा था मैं. So that's what he takes you, he puts you in a deep water. It takes a chance on you. ठीक है. And then obviously when somebody you're given a chance and ये commitment है लोगों की, ये that's the organization culture के company thrives and people are willing to put their sweat and tears behind a personality like SP जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. जी अस्सलाम, मेरा नाम जुनैद है. आई एम फ्रॉम कॉसेट ग्रुप. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस. पहले वाले का आपने पहले बता दिया कि यू आर गेटिंग पीपल फ्रॉम
other companies, other actually disciplines into Yeah. pharma. So that's what exactly what we were doing. So I just want to validate Kyamji Karen over there. नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. Secondly, with respect to leadership, I feel कि जितने भी लोग होते हैं वो whether they're part of one team in a vertical domain or on a horizontal level, everybody is the leader within themselves. So how do you align all the leaders under the main leadership at top? Because जिसमें कहते हैं ना कि आप एक लीडर होता है, सारी आवाम पीछे लग जाती है, बट उससे काम नहीं चलता. वो स्टीम इंजन वाला था जो आपका बुलेट ट्रेन होती है, उसमें each cabin itself has a driving force. So everybody is a leader within themselves. So when you have all these leaders together, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे की जाती है और उनको अलाइन करके विद द मेन गोल कैसे चलाया जाता है, नॉट जस्ट टीम्स बट लीडर्स इन जनरल. I think it's a very valid question, and I think it's a very natural question. ठीक है, and I'll tell you the reason why. We generally think that conflict is not good. Conflict is good and healthy. It's a natural reaction. Whenever two people sit, we challenge each other and we can challenge our thoughts and our concepts and our ideas. You know, it's perfectly natural. The idea is to combine the entire, you know, methodology of leadership and thinking in one direction, steering it one way, is the real challenge that in an organization we face. Because organization जिनके अंदर silo leadership होती है, they find it difficult, right? Silo leadership क्या है कि एक टेबल है, दो टेबल है, we're not talking to each other. As long as we are not talking, we will be silo. So this is my domain, I remain with my domain, this is your domain, you remain with your domain. जो टॉप लीडर होता है ना, उसका काम होता है environment क्रिएट करना जिसके अंदर हम ये सारे टेबल आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट शुरू करें. उसके अंदर चैलेंजेस भी होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, इमोशन भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी. बट व्हेन वी गेट टू द फाइनल स्टेज वेयर इट कम्स फॉर द कंपनी और द बिगर गोल, यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स एंड यू वर्क फॉर वन विजन, वन कंपनी. एंड हमारी कंपनी इस तरह से ना बहुत लकी रही है बिकॉज वी हैव अ विजनरी लीडर. अभी मैं बैठा हुआ था यहाँ पे, तो मैं बात कर रहा था, मेरे कोलीग्स यहाँ पे मुझे मिले यहाँ पे, तो आई वाज टेलिंग दैट वी हैव अ लीडर हु इज माशाल्लाह 99 years old. दिस इज व्हाट 5th November 2025 है ना, आज का दिन यही है, राइट? ही लिव्स इन 2060. ठीक है, आपने बैक टू द फ्यूचर मूवी देखी हुई है? उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि वो फ्यूचर से हो के आता है और वो वापस आके फिर बताता है कि यार ये चीज़ें. आई थिंक वी हैव अ विजनरी लीडर लाइक दिस हु इज बीन टू द फ्यूचर. 2060 के अंदर बैठ के हमें बताते हैं कि आज ये करोगे तो ये होगा. यू नीड पीपल लाइक दिस. नॉट एवरीबडी इज लाइक दिस. मैं भी बात कर रहे थे कि सेंचुरी के अंदर कोई एक इस तरह का बंदा पैदा होता है. बट द आइडिया इज यू हैव टू हैव दिस एबिलिटी टू कंबाइन पीपल इन वन गोल आफ्टर वन गोल, एंड दैट्स व्हाट. और वो उसके लिए जो लीडर का एक काम है ना, वो इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, टू टॉक. एंड इट्स ओके टू कॉन्ट्राडिक्ट, टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, बट जो मेन स्ट्रीम गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है, कि ऑर्गेनाइजेशन एज अ पीपल, एज अ कल्चर, उसकी सक्सेस है. दैट्स ऑल आई कैन टेल यू.